آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حمزہ شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف اٹھا لیا۔ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں مریم نواز نے بھی شرکت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد حمزہ شہباز شریف صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ دوں گا یا اس پر ظاہر نہ کروں گا جو وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجز جبکہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اپنے فرائض کی کما حق ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو۔ اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین۔ حمزہ شہباز 21ویں وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ نویز چودھری صاحب سینئر درجہ کار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نویز چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ تمام تر تاخیری حربے استعمال کیے کہ مگر بالآخر حمزہ شہباز نے حلف اٹھا ہی لیا ہے۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک اہم دن ہے، وہ اس حوالے سے کہ ایک روٹین کا جو عمل تھا اسے انتہائی متنازع بنا دیا گیا۔ چند لوگ جو بظاہر پڑھے لکھے محسوس ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں اسلام کی، اقتدار کی، آئین کی بالادستی کی، دو نہیں ایک پاکستان کی، قانون کی عملداری کی، انہوں نے جس بھونڈے طریقے کے ساتھ دینی شاعر، آئینی معاملات، قانونی موشگافیاں اور جس قسم کی میں سمجھتا ہوں ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا ہے، اس نے پوری قوم کو چونکا دیا ہے اور پوری پاکستانی عوام کے لیے یہ بہت ہی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اس میں قانونی حلقے بھی پریشان تھے، انتظامی حلقے بھی پریشان تھے، مقتدرہ بھی سوچ رہی تھی یہ کر کیا رہے ہیں۔ یہ جن کھنڈروں کے ہاتھ میں سارا ملک سونپ دیا گیا تھا اور انہوں نے اس کو بہت بری طریقے سے برباد بھی کیا، سخت مطلب تھا۔ اب ان سے جب آئینی طریقے کے ساتھ ساری چیزیں واپس دی گئی ہیں تو ان کا رونا پیٹنا چیخنا جو ہے وہ آسمان تک پہنچا ہوا تھا اور آخری دم تک انہوں نے کوئی نہ کوئی فول پلے کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سینس پریویل کی اور آئین اور قانون کی عملداری قائم ہو کے رہی اور یہ سارا عمل بالکل آئین میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق آج مکمل ہو گیا۔ اس پر عدلیہ کو بھی قاعدے تحسین پیش کیا جانا چاہیے۔ جو انتظامیہ ہے سول انتظامیہ، اس نے بھی بہت اہم رول ادا کیا کہ وہ کسی ٹرائل میں نہیں آئے، انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی کتاب آگے رکھی اور عدالت سے جو اس کی تشریح ہوئی تھی اس کو آگے رکھا اور اس کے مطابق عمل کرتے گئے۔ اور حکومتی جماعتیں جو ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں، انہوں نے بے حد صبر کا مظاہرہ کیا۔ ان کے پاس اسٹریٹ پاور بھی تھی، ان کے پاس ہر طریقے کے ایسے وسائل موجود تھے کہ جس سے وہ آگے بڑھ کر ان غیر قانونی اقدامات کا جواب دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے صبر اور برداشت کا غیر معمولی مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں یہ سارا عمل آج خوش رسولی کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ ٹھیک ہے نویز چودھری صاحب، ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے بھی۔ سلیم بخاری صاحب، فائنلی حمزہ شہباز نے اوتھ لے لیا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور وزیر اعلیٰ ہیں جو کہ اجلاس انہوں نے کنڈکٹ کیا، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال سے اہم حقوق کا ذکر اس وقت کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ صبح ہوا
जिस तरीके से चाबी के खिलौने की तरह से उस्मान बुज़दार साहब इस्तेमाल हुए, जिस तरह अकल से आरी गवर्नर साहब ने एक्ट किया, ये सारी चीज़ें याद तो रखी जाएंगी हिस्ट्री में, लेकिन ये कि इनके लिए और इनकी आने वाली नस्लों के लिए ये एक बहुत खौफनाक ख्वाब की तरह से होगा। इसलिए कि आइन से रूगर्दानी करके और अदलिया के अहकामात न मान के इन्होंने अपने आप को जो कुछ साबित करने की कोशिश की है, उसके बारे में मेरे ख्याल से अब कोई इबहम होना नहीं चाहिए। अच्छी बात यह है कि हमजा शहबाज साहब जो हैं वो 21वें वज़ीर आला बन गए हैं, उन्होंने ओथ ले लिया है अपने आप। इसका कहानी इसके साथ ही खत्म हो जाएगी, बाकी सारा कुछ है। अब परवेज इलाही साहब को खैर मनानी चाहिए अपनी स्पीकरशिप की, क्योंकि वो भी अब चंद दिनों की मेहमान है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा बुरहान जो है उससे बचा भी गया है, और अब एक रास्ता हमवार हो गया है कि एक गवर्नेंस की तरफ अगर हुकूमत चलती है और जो अवाम के मसाइल हैं उनको हल करने की रवायत जो है हमजा शहबाज अपने बाप वाली जारी रखते हैं, तो मेरे ख्याल से फिर लोग भूल जाएंगे कि क्या बदमज़गी हुई थी और क्या पीटीआई के लोगों ने किस तरह से एक्ट किया था। आज भी आप देख लीजिए कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। जो कल का वाक़या हुआ है मदीना मुनव्वरा वाला, उसके बाद से हमें वो एंथुसियाज्म पीटीआई के अंदर और पीटीआई के रैंक्स एंड फाइल्स में नज़र नहीं आता है, क्योंकि आज भी देख लीजिए कहीं किसी एक जगह भी कुछ 10 लोग इकट्ठे होके, यानी पीटीआई के जो हैं वो किसी किस्म की कोई तकरीबी कार्रवाई करने से तो बात रही हैं, वो इकट्ठे ही नहीं हो पाए हैं, इसलिए कि डिमोरलाइज्ड हैं उनके सपोर्टर जो हैं। तो मैं समझता हूँ एक पंजाब में एक अच्छा आगाज हुआ है, ये दुआ करनी चाहिए कि ये गवर्नेंस के मामला जात जो हैं वो हल करने में ये कामयाब हो जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त उनके पास नहीं होगा। उन्हें बहुत मुख्तसर वक्त में जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने फेडरेशन के अंदर बैठ के अपना इम्पैक्ट बनाया है 3 हफ्ते के बीच जो कुछ वो कर चुके हैं, जो कुछ हमने देखा है, अगर ये भी उसी पर अमल करते हुए जल्दी जल्दी फैसले करके अवाम को कुछ रिलीफ दे पाएंगे तो यकीनी तौर पर ये पॉपुलर वज़ीर आला बन जाएंगे, पॉपुलर वज़ीर आला भी बन जाएंगे। और नबी चौधरी साहब, यकीनी तौर पर शहबाज शरीफ साहब की तो मिसाल दी जाती है, अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो पंजाब में ज़बरदस्त काम किया, अब वो विफाक में है और उनके बेटे ही अब हमजा शहबाज क्योंकि अब पंजाब में आए हैं, तो क्या लगता है इनको स्टैंडर्ड जो है वो बार ऊपर लेके जाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी? जी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें इनको एक जो एडवांटेज है वो तस्लीम किया जाना चाहिए कि पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ साहब बहुत देर से काम करते हैं और गैर मामूली काम उन्होंने किया है। तो हमजा शहबाज जो हैं वो सारी सूरत हाल को विटनेस करते रहे, उनके सामने सारी चीज़ें होती रही हैं, तो जो सीखने का एक अमल था वो घर से ही उनको मिला। अब ये उनकी हिम्मत पर है कि वो अपने वालिद की तरह से मेहनत करें। तरीक़ेकार तो उनको बता दिया गया कि टीम कैसे बनानी है, चीज़ों को आगे लेके कैसे जाना है, मेगा प्रोजेक्ट जो है उन्हें कैसे पाया तकमील तक अंजाम पहुँचाना है, इंतजामी उमूर को कैसे लेके चलना है और टीम वर्क कैसे करना है, ये तो सब उनको बता दिया गया है। अब हमजा शहबाज ने मेहनत करनी है, मेहनत होने करनी पड़ेगी ज़ाहिर बहुत ज़्यादा, और फुटप्रिंट पर अपने वालिद के चलेंगे तो यकीनी तौर पर वो भी ज़ाहिर शहबाज शरीफ तो वो नहीं बन सकते, लेकिन एक अच्छा तासुर अपना देने में वो कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नवी चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सलीम बुखारी साहब, आप दोनों ने अपना तजिया दिया, इस हवाले से बहुत शुक्रिया आपका। मरियम नवाज कहती हैं कि मदीना मुनव्वरा एक ऐसी जगह है जिसके बारे में सूरह हुजरात की आयत है, मगर पीटीआई वाले सियासी दुश्मनी में इतने आगे बढ़ गए हैं कि मुसलमानों के जज्बात को दुख पहुंचा है। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सऊदी अरब में जो वाक़या हुआ, मदीना मुनव्वरा एक ऐसी जगह है जिसके बारे में सूरह हुजरात की आयत है कि अपनी आवाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद न करो। तो ये सियासी दुश्मनी में इतने आगे बढ़ गए कि इन्होंने उस जगह के तकद्दस का, उस हस्ती का लिहाज नहीं किया जो अल्लाह ताला की महबूब हस्ती है। तो मैं समझती हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि अक्रॉस द ग्लोब मुसलमानों के जज्बात हर्ट हुए और ये नहीं होना चाहिए था, और ये बड़ा प्लान तरीके से हुआ। सऊदी अरब ने अरेस्ट भी किए हैं और यहाँ भी जो हमारा कानून है इंशाअल्लाह वो हरकत में आएगा, क्योंकि इस किस्म की जो गवर्नर पंजाब का हमजा शहबाज का हल्फ रुकवाने का आखिरी हरबा भी नाकाम हो गया। गवर्नर पंजाब ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा गैर आइनी करार देकर मुस्तरद किया।
गवर्नर पंजाब ने स्पीकर पंजाब असम्बली को भी खत लिखा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही को गवर्नर का खत मौसूल हुआ। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने खत में कहा कि वज़ीर आला का इस्तीफ़ा आर्टिकल 130 के तकाज़े पूरे नहीं करता। वज़ीर आला का इस्तीफ़ा हाथ से लिखा हो। आइन के मुताबिक वज़ीर आला का इस्तीफ़ा दुरुस्त होने के लिए शराइत को पूरा करना ज़रूरी है। गवर्नर पंजाब से मुखातिब होना ज़रूरी होता है। उस्मान बुज़दार ने इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को दिया जो कि गैर आइनी है। उस्मान बुज़दार ने इस्तीफ़ा गवर्नर के नाम दिया ही नहीं। उस वक्त के गवर्नर पंजाब ने आर्टिकल 130 के मुज़मरात को मद्देनज़र नहीं रखा, ये कहा गया उस खत में जो कि गवर्नर पंजाब की जानिब से भेजा गया था। और अब बात करेंगे पंजाब असम्बली हंगामा आराई केस की। तो एडिशनल सेशन जज हाफिज रिजवान ने स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की हमजा शहबाज, राना मशहूद और दीगर पुलिस अफसरान के खिलाफ दायर इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त निपटा दी है। अदालत ने लिखा कि एक वाक़े की 2 FIR नहीं हो सकती हैं। तो अपडेट कर रहे हैं आपको पंजाब असम्बली हंगामा आराई केस के हवाले से। एडिशनल सेशन जज हाफिज रिजवान ने स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की हमजा शहबाज, राना मशहूद और दीगर पुलिस अफसरान के खिलाफ दायर अंदराज मुकदमे की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने लिखा कि एक वाक़े की 2 FIRs नहीं हो सकती हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम मामले के हवाले से। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई के हवाले से ये केस है। एडिशनल सेशन जज हाफिज रिजवान ने स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की हमजा शहबाज, राना मशहूद और दीगर पुलिस अफसरान के खिलाफ दायर अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त निपटा दी और अदालत ने लिखा कि एक वाक़े की 2 FIRs नहीं हो सकती। परवेज इलाही की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उन पर तशद्दुद किया गया, उनका बाजू तोड़ दिया गया और जिसके बाद उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, मगर अब एडिशनल सेशन जज की जानिब से इस दरख्वास्त को निपटा दिया गया है और इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया है और ये लिखा गया है कि किसी एक वाक़े की 2 FIRs नहीं हो सकती हैं। 2 FIRs नहीं हो सकती हैं। दरख्वास्त गुजार को हिदायत की अगर आप अपना बयान देना चाहते हैं तो तफ्तीशी को FCIR में बयान रिकॉर्ड दे सकते हैं। अदालत ने अपना महफूज फैसला सुना दिया है। आगे बढ़ेंगे। काफली के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश आने वाले वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हरम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश आने वाला वाक़या नहायत अफसोसनाक है। वाक़े से पाकिस्तान की बदनामी हुई। मस्जिद नबवी शरीफ में कारकुनान के एहतजाज ने हंगामे की सूरत इख्तियार की। शाहजहान बुगटी से बदसलूकी की गई और उनके बाल नोचे गए। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात कहते हैं कि मस्जिद नबवी में पेश आने वाले वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हरम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश आने वाला वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। वाक़े से पाकिस्तान की बदनामी हुई। मस्जिद नबवी में कारकुनान के एहतजाज ने हंगामे की सूरत इख्तियार की। शाहजहान बुगटी से बदसलूकी की गई और उनके बाल नोचे गए। हरम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश आने वाला वाक़या नहायत अफसोसनाक है। वाक़े से पाकिस्तान की बदनामी हुई। मस्जिद नबवी शरीफ में कारकुनान के एहतजाज ने हंगामे की सूरत इख्तियार की। शाहजहान बुगटी से बदसलूकी की गई और उनके बाल नोचे गए। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात कहते हैं कि मस्जिद नबवी में पेश आने वाले वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हरम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश आने वाला वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। वाक़े से पाकिस्तान की बदनामी हुई। मस्जिद नबवी में कारकुनान के एहतजाज ने हंगामे की सूरत इख्तियार की। शाहजहान बुगटी से बदसलूकी की गई और उनके बाल नोचे गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्रे की सादत हासिल कर ली। वज़ीर आज़म के लिए खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। उन्होंने तवाफ़ के दौरान हज़रत अस्वद को बोसा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह के वफ़द ने भी उम्रे की सादत हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्रे की सादत हासिल कर ली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब पर हैं और वज़ीर आज़म के लिए खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। उन्होंने तवाफ़ के दौरान हज़रत अस्वद को बोसा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए रोज़ा रसूल का दरवाज़ा खोला गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तानी वफ़द के हमरा रोज़ा पाक में दाखिल हुए और दुरूद सलाम पेश किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए रोज़ा रसूल का दरवाज़ा खोल दिया गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तानी वफ़द के हमरा रोज़ा पाक में दाखिल हुए और दुरूद सलाम पेश किया।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सऊदी अरब से वतन वापसी पर सबसे पहले वालिदा के मज़ार पर हाजिरी देंगे। बिलावल भुट्टो बतौर वज़ीर ख़ारजा पहली मरतबा वालिदा के मज़ार पर हाजिरी देंगे। बिलावल भुट्टो 1 मई को लाड़काना पहुंचेंगे। वो ईद की नमाज भी गढ़ी खुदा बख्श में अदा करेंगे। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, कहिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सऊदी अरब से वापसी पर सबसे पहले अपनी वालदा मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी बतौर वज़ीर ख़ारजा पहली मरतबा अपनी वालदा के मज़ार पर हाजिरी देंगे। 1 मई को लाड़काना पहुंचेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर ख़ारजा, और चेयरमैन पीपल्स पार्टी लाड़काना पहुंचकर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी देंगे। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ईद की नमाज भी गढ़ी खुदा बख्श में अदा करेंगे। यूं वतन वापसी पर सबसे पहले बतौर वजीर खारजा वो अपनी वालदा के मज़ार पर हाजिरी देंगे। जी ठीक है उस्मान, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। बताएं, लाहौर हाई कोर्ट का स्पीकर कौमी असम्बली के जरिए वज़ीर आला के हल्फ का फैसला है। 2 रुकनी बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी, जस्टिस तारिक सलीम शेख ने समाअत की। बेंच ने फैसले के पैरा 9 में सदर गवर्नर के खिलाफ रिमार्क्स मुअत्तल कर दिए। केस की मजीद समाअत ईद की छुट्टियों के बाद होगी। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताएगा इस हवाले से। जी, लाहौर हाई कोर्ट के गुज़श्ता रोज के जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली को 9 मरतबा वज़ीर आला से हल्फ लेने का कहा गया था, उसके खिलाफ अरकान असम्बली ने कोर्ट अपील दायर की थी। और आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद महमूद सेठी और जस्टिस तारिक सलीम और ने इसकी समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच ने पहले फैसलों में सदर पाकिस्तान और गवर्नर के खिलाफ दिए गए रिमार्क्स भी मुअत्तल कर दिए हैं। वो ऑर्डर्स का वो वीसा मुअत्तल किया है। को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत ईद की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी की है। ठीक है, केस की समाअत जो है ईद की छुट्टियों के बाद होगी। मलिक अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का सदर ममलिकत आरिफ अलवी को ख़त। इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी अलग से ख़त लिखा है। ख़त में मुतालबा किया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अमरीकी धमकी पर पाकिस्तानी सफ़ीर के मरासले के बैरूनी साजिश पर मुश्तमिल मंदरजात का जायज़ा लें। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। जी अवैस, बताइए इस हवाले से, एक जो ख़त की कॉपी है वो पहले भी भिजवाई गई थी डिप्टी स्पीकर की जानिब से, मगर अब ख़त लिखा गया। जी बिल्कुल, इमरान खान ने सदर मुमलिकत अफवाज पाकिस्तान के जो कमांडर इन चीफ डॉक्टर आरिफ अलवी को खत लिखा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी अलग से खत तहरीर किया है। सदर मुमलिकत से बतौर सरबराह रियासत और कमांडर इन चीफ अफवाज पाकिस्तान पूरी कार्रवाई की सिफारिश की है। उस पर काफ़ी डिटेल लिखी गई है और एंड में जो है उन्होंने ये बात की है कि अदालत साजिश के किरदारों के तयन के लिए कमीशन जो है वो दे, जो फिर आम मामले की तहकीकात भी करे। जो चीफ जस्टिस मरासले की गर्मी के हवाले से जो बात उन्होंने लिखी है चीफ जस्टिस के हवाले से भी, उससे भी ये बात की है कि तहकीकात होनी चाहिए। और सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस से गुजारिश है कि आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरे और उसकी तहकीकात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अवैस कियानी, आपने अपडेट किया।